Hi, let's do the next one. And next one is discrete goods. Now, discrete goods का income of a curve is not important या आता नहीं है exams में, so we don't have to do. Numericals इसके हम कर ही नहीं सकते हैं because like I said last time कि discrete goods जो है वो whole numbers में exist करते हैं और हमारे पास unity function limits का नहीं होता है, हमारे syllabus में नहीं है, तो इसके numericals में नहीं है. So the only thing we have to do is the price of a curve. From the price of a curve हम एक concept introduce करेंगे यहाँ पे reservation price का, and these are the only two things that we need to understand in discrete goods. So discrete goods में हमें price of a curve समझना है और reservation price समझना है, and that is it. So let's start. Price of a curve के लिए हमें पता है हमें क्या चाहिए. We need a budget line AB. हमने price of good 1 को decrease किया, हमारे पास आया AB1. Price of good 1 further decrease किया, हमारे पास आया AB2. Let's superimpose the discrete goods. So this is my first indifference curve. As you can see here, जो हमने जैसे choice में भी किया था, the consumer is indifferent between 0 and 1. He is indifferent between consuming 0 and 1. Price हमारा fall किया तो हम इस IC पे move कर गए IC1 पे. Now the consumer becomes indifferent between consuming 1 and 2. Price further fall किया, the consumer becomes indifferent between consuming 2 or 3. So basically पहले फर्स्ट बजट लाइन पे एट प्राइस P1 he was indifferent between consuming 0 and 1. When price 1 fall करा, P1 dash हुआ, he became indifferent between 1 and 2. And जब price further fall किया, then he became indifferent between 2 and 3. How does that function? ये होता क्या है? यहाँ पे अब हम concept introduce करेंगे reservation price का. Reservation price का. What is reservation price? Reservation price is that price. बहुत अगर मैं पहले लेमैन लैंग्वेज में बोलूं, is that price at which there is no consumer serve. This is the layman language. So suppose I am talking about a good one, which is let's say a whole number good, which is let's say a car, and I come to you and I say, listen, you want to buy your first car. इस फर्स्ट कार की आप मुझे यूटिलिटी बताओगे आप कितनी है. फर्स्ट कार की आपकी यूटिलिटी कितनी है. लेट मी नॉट टेक अ कार बिकॉज वैल्यूज बहुत हाई हो जाएंगी. लेट मी टेक अ काउ. फर्स्ट काउ की आप मुझे बताइए कि यूटिलिटी कितनी है. कैन यू टेल मी फर्स्ट काउ की यूटिलिटी कितनी है. लेट्स सपोज यू से माय यूटिलिटी फॉर द फर्स्ट काउ इज 100 रुपीज एंड आई से देन कि ठीक है आई एम गोइंग टू चार्ज योर प्राइस विच इज 100 रुपीज. तो क्या हुआ, आपने मुझे 100 रुपीज दिए, मैंने आपको उसके बदले काउ दी. उस काउ से आपको यूटिलिटी कितनी मिली, 100 रुपीज. तो जितना आपने गिव अप किया उतना ही तो आपके पास आया. तो आपके पास कोई कंज्यूमर सरप्लस बचा नहीं. ऑन दी अदर हैंड अगर मैं बोलती प्राइस में आपको चार्ज करूंगी 90 रुपीज, तो आपका क्या होता, आप मुझे 90 रुपीज देते, आपके पास काउ आती, काउ वुड हैव गिवन यू यूटिलिटी ऑफ 100 रुपीज. आपके पास तब कंज्यूमर सरप्लस बचता 10 रुपीज. लेकिन हम यहाँ पे रिजर्वेशन प्राइस की बात कर रहे हैं. तो रिजर्वेशन प्राइस वो प्राइस होता है जहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस बचता ही नहीं है. इसका मतलब रिजर्वेशन प्राइस वो प्राइस होता है जहाँ पे is the amount is the price at is the amount of utility, where the price is equal to the amount of utility, where the price is equal to the amount of utility. ठीक है. So now we talk about the same good here जो हमने यहाँ पे करा था with respect to reservation price. So suppose I am plotting the demand curve with respect to P1 for X1. जब मेरा प्राइस बहुत हाई है तब तो मैं X1 कंज्यूम ही नहीं कर रही हूँ. I am at a 0 units of X1. प्राइस मेरा कम होता जाता है, it comes to the reservation price R1. Now R1 becomes that price जिसमें the consumer becomes indifferent between buying 0 unit and 1 unit of good one, between 0 unit and 1 unit of good one, which is right here. Here you see this point, these 2 points यहाँ. So basically अगर मैं इस एग्जाम्पल की बात करूं, जब मैंने आपने मुझे बोला मैं यूटिलिटी 100 रुपीज की है और मैंने आपको बोला आपसे 100 रुपए चार्ज करूंगी, तो क्या हुआ, आपने मुझे 100 रुपीज दिए, मैंने आपको काउ दी, उस काउ से आपको कितना यूटिलिटी मिला, 100 रुपीज का. आपको कुछ गेन हुआ नहीं. सो व्हेन आई आस्क यू वुड यू लाइक टू डू दिस ट्रांजैक्शन, यू विल से आई एम इंडिफरेंट. क्योंकि जितनी मैंने यूटिलिटी गिव अप करी, अगर मैं सिर्फ यूटिलिटी के टर्म्स में देखूं, जितनी मैंने यूटिलिटी गिव अप करी उतनी ही तो मुझे वापस मिली. तो मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना. आई एम न्यूट्रल बिकॉज द अमाउंट I gave up is equal to the amount that I got. So I am indifferent. But anytime the price is actually less than 100, चाहे वो 99 भी है, तब भी क्या होगा, आप ये वाला ट्रेड करना चाहोगे क्योंकि आपको यूटिलिटी 100
की मिल रही है which is definitely more than a 99, then you will definitely want to do this trade, right? So जैसे आपका कंज्यूमर सरप्लस थोड़ा सा भी बचना शुरू हो जाता है, आप वो ट्रांजैक्शन डेफिनेटली करना ही करना चाहोगे। आप ट्रांजैक्शन करने के लिए कब इंडिफरेंट होते हो? जब आप जो अमाउंट गिव अप करते हो वो इक्वल होता है टू द अमाउंट दैट यू गेट, राइट? सो हियर इन इट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। सो रिजर्वेशन प्राइस R1 पे यू आर इंडिफरेंट बिटवीन कंज्यूमिंग 0 यूनिट एंड 1 यूनिट, क्योंकि आपको लगता है अगर मैं पैसे दे के 1 यूनिट खरीद भी लूंगा तो उस 1 यूनिट से जो मुझे यूटिलिटी मिलेगी उतना ही तो यूटिलिटी मैं गिव अप करूंगा पैसे देने से। तो इसीलिए एट R1 आई एम इंडिफरेंट बिटवीन बाइंग 0 यूनिट और एंड 1 यूनिट, ठीक है? उसके बाद प्राइस फर्दर कम होता जाता है। जैसे ही प्राइस P1 से जैसे ही प्राइस R1 से थोड़ा सा कम हो जाएगा, आप फर्स्ट यूनिट डेफिनेटली ले लोगे, फर्स्ट यूनिट आप लेते जाओगे, हाँ। फिर आता है R2 पे यू बिकम इंडिफरेंट बिटवीन बाइंग द फर्स्ट यूनिट एंड द सेकंड यूनिट, फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेट मी गिव इट numbers. Let's say this is 10 and this is 8 and I'm talking about any good which can be consumed in whole numbers. Let's say I'm talking about ice cream and you're thinking about buying 1 scoop, 2 scoop, 3 scoop, 4 scoop, ठीक है? जब प्राइस 10 रुपीज अ स्कूप से ऊपर था तब तो आप खरीद ही नहीं रहे थे। जब प्राइस 10 रुपीज अ स्कूप हुआ तो आपने बोला कि मेरी आइसक्रीम के एक स्कूप से यूटिलिटी है 10 रुपीज वर्थ की, तो अगर मुझे 10 रुपीज गिव अप करके 1 स्कूप मिलेगा तो मैं इंडिफरेंट हूँ, क्योंकि मेरी यूटिलिटी जितनी मैंने गिव अप करी इन टर्म्स ऑफ मनी इज द सेम अमाउंट ऑफ यूटिलिटी दैट आई एम गेटिंग फ्रॉम 1 स्कूप ऑफ आइसक्रीम, ठीक है? मैंने जितना यूटिलिटी गिव अप किया पैसों के टर्म्स में उतना ही यूटिलिटी मुझे मिल रहा है फ्रॉम 1 स्कूप ऑफ आइसक्रीम, ठीक है? तो मैंने बोला आई एम इंडिफरेंट बिटवीन 0 and 1. When I'm indifferent between 0 and 1, I can't make a solid line here because it doesn't exist. मैं 0 to 1 के बीच में कुछ खरीद ही नहीं सकती हूँ। Remember whole numbers concept? तो मैं या तो 0 खरीदूंगी या 1 खरीदूंगी। तो मैंने बोला 0 या 1 पे मैं आके रुक गई। जैसे ही शॉपकीपर आपको बोलता है कि मैं आपको 9.9 रुपीज चार्ज करूंगा, आपने बोला ओहो 0.1 की यूटिलिटी तो मेरे पास बचेगी, लेट मी बाय दिस आइसक्रीम। द सेम सिनेरियो आपके साथ चलता रहेगा जब तक प्राइस 8 रुपीज तक नहीं आया। सो एट 8 रुपीज व्हाट इज हैपनिंग? आपने 1 स्कूप तो डेफिनेटली खरीदा ही खरीदा, क्योंकि फर्स्ट स्कूप से आपको यूटिलिटी मिली 10 की, आपको प्राइस देना पड़ा 8, आपका कंज्यूमर सरप्लस था 2, आप फर्स्ट यूनिट तो खरीदोगे, बट एट 8 रुपीज you become indifferent between buying the first unit and the second unit. So you are saying from the second scoop of ice cream, my utility is worth 8 rupees. तो अगर मुझे प्राइस भी 8 रुपीज पड़ेगा तो मैं फर्स्ट यूनिट ही खरीदूं या फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट दोनों खरीदूं, उसमें मैं इंडिफरेंट हूँ। लेकिन जैसे ही प्राइस जो है मेरा 8 रुपीज से कम होगा, वैसे ही मैं कितने स्कूप्स खरीदूंगा? 2 scoops. ये सिनेरियो मेरा चलेगा R3 तक. Let's say R3 is 5 rupees. And then at 5 rupees, I become indifferent between buying 2 units and 3 units and so on and so forth. So my demand curve for a discrete goods. My demand curve for a discrete goods is actually this line, then this line, then this line and so on and so forth. Just for the sake of continuity, I'm going to join these with dashed lines. So then that's why it looks like a step-like formation. Do we understand? My actual demand curve is this y-axis. Let me change the color and show you. My actual demand curve is this y-axis, then this line, then this line, then this line and so on and so forth. ठीक है, but for the sake of continuity मैंने इसको join कर दिया. So it looks like a step-like formation. So this becomes the demand curve for discrete goods. तो if just to sort of recollect, हमारे लिए discrete goods में क्या important है? हमारे लिए discrete goods में important है price of a curve and demand curve. इसमें numerical नहीं आता, income of a curve नहीं आता. और इसके अंदर हमने concept पढ़ा reservation price का, और इसका demand curve is unique because it's like a step-like formation. So these are the things in discrete goods. एक बार में समझ ना आए, एक बार और पढ़ लो वीडियो. रिजर्वेशन प्राइस का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ माइक्रो में नहीं, आगे मैक्रो में भी और बाकी सब्जेक्ट्स में भी, एंड इवेंचुअली इन द नेक्स्ट फ्यू सेमेस्टर्स एज वेल. सो रिजर्वेशन प्राइस एज अ कॉन्सेप्ट शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर. रिजर्वेशन प्राइस वो प्राइस होता है जहां पे मेरे पास बिल्कुल कंज्यूमर सरप्लस नहीं रहता है. सो रिजर्वेशन प्राइस इज दैट प्राइस इन विच आई एम न्यूट्रल बिटवीन बाइंग एंड नॉट बाइंग. मैं बाय करूं या ना करूं, मेरी यूटिलिटी सेम रहती है, उस प्राइस को हम रिजर्वेशन प्राइस बोलते हैं. All right, thank you.